what is perhaps a turning point in the turbulent politics of Pakistan. Former Prime Minister Nawaz Sharif landed in Pakistan after 4 years of self-imposed exile, and this is going to have major ramifications for Pakistan, perhaps also a hint at what could be fair polls, fair elections, because remember, elections are slated to be held early next year in 2024. It's going to be one interesting election with Nawaz Sharif now making a comeback, and what an interesting role reversal, because as Nawaz Sharif touches down in Pakistan, Imran Khan, his arch rival, is in jail. So, well, remains to be seen how Nawaz Sharif makes his political comeback, whether he will be able to wrestle his supporters from Imran Khan. All of those things we'll explore further in the show. But first, let's listen in to what Nawaz Sharif had to say when he landed in Pakistan. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہی ایک مجاز ادارہ ہے جو اس طرح کے فیصلے کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا تو ہر آپ کیا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ نہیں، میری ترجیح وہی ہے جو الیکشن کمیشن سمجھتا ہے. الیکشن ایک فیئر الیکشن کمیشن ہے. پاکستان آج ایک فیئر الیکشن کمیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں بہترین. So Nawaz Sharif's crucial touchdown in Islamabad. He'll probably go to Lahore as well after that. Extremely important, as I said, his homecoming after 4 years of exile. He was convicted in a corruption case in 2018. Then, of course, it was a long legal battle for him as well. Finally, he got protective bail, and he was in London. And now he's finally coming back to Pakistan. Of course, what's also important here is the fact that his return, in a sense, signals his hope for a fair elections and at the same time a political comeback. Joining me now on the broadcast, I'm being joined by Qaisar Mumtaz, advocate and leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf, also a legal advisor to Imran Khan's party. Also with me, Irshad Ahmed, senior leader of the Pakistan Muslim League, Nawaz Sharif's party. Thanks very much, gentlemen, for joining us on the broadcast. Let me go across to you, Qaisar Saab, first, because this return of Nawaz Sharif is something which is extremely important politically, and what a role reversal, as I said, it is. You have the military's former blue-eyed boy Imran Khan in jail as Nawaz Sharif now touches down in Pakistan. Do you think, is your party a bit scared now? Because, of course, Nawaz Sharif's bid will be to wrestle his supporters back from Imran Khan. دیکھیں جی، عمران خان جو ہیں وہ بیہائنڈ دی بار ہیں، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور نواز شریف آئے ہیں، تو ان کی عوام میں جو مقبولیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز کی وجہ سے یہ پھر باہر چلے گئے تھے، سیلف ایگزائل تھی، خود گئے تھے، اور یہ اسٹامپ پیپر 50 روپے کا دے کر کورٹس کو گئے تھے، اور یہ پھر اب واپس یہ آئے ہیں، تو یہ جیسے آئے ہیں کسی بیہائنڈ دا سین ڈیل سے آ رہے ہیں. تو یہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کے دل میں رہتا ہے، جو پاکستان کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے. تو عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور مقدمات بنائے ہوئے ہیں ان پر. کیسر صاحب، آپ نے ڈیل کی بات کری، تو یہ جو ایک ڈیل کے تمام سوالات اس پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں. تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس ڈیل کے ایلیگیشن کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی نواز شریف کا بھی یہ کہنا ہے کہ کوئی اس طریقے کی ڈیل ہم نے سٹرائک نہیں کی ہے، چاہے وہ ملٹری کے ساتھ ہو یا پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ ہو. خیر، وہ ابھی ایلیگیشن تمام ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک فیئر الیکشن ہوگا، کیونکہ نواز شریف کا واپس لوٹنا، آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں اب ہوپ ہے کہ جنوری میں جو الیکشنز ہوں گے وہ فیئر ہوں گے، ڈیموکریٹکلی وہ الیکشنز کنڈکٹ کیے جائیں گے؟ جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ایک تحریک انصاف جو پاکستان کی عوامی پارٹی ہے، اور اس کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اور یہ ان کو لے کے آئے ہیں، یہ چلے ہوئے کارتوس جو ہیں اب آئے ہیں. تو یہ عدلیہ سے میں کہوں گا، پاکستان کی عدلیہ کو، کہ ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، اور جو عمران خان ہیں وہ ان کو ایزی موقع ملنا چاہیے. اور جو الیکشن کمیشن ہے
वो कोई सही रोल प्ले नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी मच क्लियर कि जो है 90 डेज में इलेक्शन होंगे। यहाँ पे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन का कोई एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हमारे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों। लेकिन कैसर साहब, आपने ये कहा कि आवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, द पब्लिक वोंट एक्सेप्ट नवाज शरीफ रिटर्न, द पब्लिक वोंट एक्सेप्ट नवाज शरीफ एज अ लीडर। बट इस वक्त तो इमरान खान भी जेल में, तमाम करप्शन केसेस उनके अगेंस्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये इमरान खान की जो इस समय इमेज है, जो परसेप्शन है पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ के आने से और कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा कि अब आप यू हैव अ लीडर कमिंग बैक, रिटर्निंग फ्रॉम एग्जाइल, perhaps he'll be arguing his cases in court as well, and you have another leader in jail. देखें, एक लीडर को आप बांध रहे हैं, एक लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है, और एक को जो है ये निगरान हुकूमत प्रोटोकॉल दे रही है। निगरान हुकूमत जो है गाड़ियां पकड़ पकड़ के बंदे जा रहे हैं लाग लेके कि जनाब उनको जाके इस्तकबाल करें। एक डिम्बी जो है पर्सनैलिटी को जो है वो अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोई ऐसी इनमें अवामी मकबूलियत रही है। निगरान हुकूमत भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को और इमरान खान को। जो आज भी बैलेट पेपर पर जब भी इमरान खान का बल्ला आएगा तो बल्ला जो है वो बहुत जोरदार छाटे लगाएगा। लेकिन वो अब कोशिश कर रहे हैं किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कभी सोचते हैं कि बैलेट पेपर से इनका निशान हटा दिया जाए, कभी ये सोचते हैं। आप देखिए, इमरान खान नवाज शरीफ के रिटर्न से कहीं ना कहीं 2024 की जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी भी एक तरीके से वो घोषणा हो गई, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज इफ द पोल ब्यूगल हैज बीन साउंडेड। तो अब पीटीआई के आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी? पीटीआई जो है वो उसने अपने पत्ते जो हैं वो बड़े वाजे किए हुए हैं, बहुत क्लियर सूरत हाल है। हम हर हथकंडे के अगेंस्ट हमारे पास एक सोल्यूशन है, और हम अगर हमारा नाम बैलेट पेपर से हमारा पीटीआई को बैन करते हैं या पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देते या बैट के निशान को हमारा जो ठीक है, तो आपका कहना है कि आपकी स्ट्रैटेजी तैयार है। आई एम ऑल्सो बीइंग जॉइंड बाय इरशाद अहमद, द सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ पार्टी। थैंक्स वेरी मच इरशाद अहमद फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। अभी आपके जो राइवल हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ को आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी कोई मकबूलियत नहीं रह गई है पाकिस्तान में। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट? डू यू थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एक्सेप्ट नवाज शरीफ एज ही रिटर्न्स आफ्टर 4 years ऑफ एग्जाइल? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा, जो कहने वाले हैं वो बहुत अरसे से यही बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पाकिस्तान में, मेरे अजीम पाकिस्तान में इस वक्त आज का दिन ऐसे लग रहा है जैसे चांद रात का दिन हो या ईद का दिन हो। इतनी खुशियां मना रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान को सजाया गया। मेरे इस्लामाबाद से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक ऐसे झंडों से, सब्ज हलाली परचम से और मुस्लिम लीग के झंडों से सजाया गया। और इस तरह हजारों लाखों की तादाद में लोग लाहौर की तरफ रवां दवा है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, जितने पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ रिजू किया और उन्होंने फ्लाइट्स पकड़ी और लाहौर पहुंचे। आज शाम को आपको मालूम पड़ जाएगा कि 5-6 बजे के दरमियान जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहां पहुंचेंगे मीनारे पाकिस्तान, तो सारी दुनिया देखेगी कि मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। वो इतनी वालेहाना मोहब्बत मिलेगी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और इस तरह जीतेंगे ये। और दूसरी बात यह है कि किसी भी द काइंड ऑफ टर्नआउट। बट इरशाद साहब, एक बात और बताएं कि जो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एक डील कहीं ना कहीं ब्रोकर करी गई थी बिटवीन नवाज शरीफ एंड द मिलिट्री, बिकॉज नवाज शरीफ हैज बीन अ वेरी स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ द मिलिट्री। इनफैक्ट ही वाज ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कू। तो इस डील पर क्या आपका कहना है? क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन हिम एंड द मिलिट्री। नहीं जी, देखें ये हमारे मुल्क मुखालिफ जो एजेंडे की पार्टीज हैं वो ये बात करती हैं। मेरी आर्मी का, मेरी एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई लेना देना नहीं। वो मेरी सरहदों के मुहाफिज हैं और कोई डील नहीं हुई। बिल्कुल जिस तरह जो पीछे पार्टी बनी पीटीआई, जिसका नाम पीटीआई था, जो शैतान खान था, इमरान खान था जिसका नाम, उसने जो कुछ मुल्क के हालात पे पहुंचाया उससे लोग घबरा गए थे। मेरा मुल्क के तमाम लोग जो रहने वाले हैं वो इतने परेशान थे। इतनी महंगाई, इतनी जो कुछ मुल्क में हो सकता था, जो आप लोग हिंदुस्तान 75 साल में नहीं कर सका,
उस शख्स शैतान खान ने 3 साल में कर दिखाया और पाकिस्तान को उस चलिए तो सियासत डगर पे पहुंचाया आखिरी कि जहां सवाल से मेरा वापसी आपसे मुश्किल शाह थी, साहब ये लेकिन है, सियासत की जहां तक बात है, अब आप इमरान खान जैसे आपने कहा जेल में है इस वक्त, लेकिन अभी नवाज शरीफ भी ही इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, अभी एक लॉन्ग लीगल बैटल भी है जो नवाज शरीफ को लड़ना है। क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? डू यू थिंक ही कैन मेक अ कम बैक एंड यू नो इज ही आइंग अ 4th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर? अवाम मोहब्बत करती है मेरे कायद से और मेरे कायद मोहब्बत करते हैं अवाम से। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग से इसलिए प्यार करते हैं कि ये पार्टी, ये कायद मुल्क के लिए काम करता है, मुल्क के इदारों के लिए काम करता है। मेरा जितना मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ मेरे कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तानी अवाम के लिए किया, नो डाउट कि उनको इतना वोट पड़ेगा कि लोग देखेंगे। जो हमारे मुखालिफ पार्टीज हैं उनको मालूम पड़ जाएगा चंद दिनों में। और मेरे कायद ने आते ऐलान यही किया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नो डाउट कि दूसरी बात नहीं है। और इंशाल्लाह इलेक्शन में हम जा रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी हमारी भरपूर तरीके से है। ठीक है, तो आप दोनों का यही कहना है कि चाहे पीटीआई हो चाहे पीएमएलएन हो, दोनों की तैयारी पूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो देयर पॉलिटिक्स स्पीकिंग इन पाकिस्तान।